औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम. Today's my topic of discussion is tumor suppressor genes. It is actually the insensitivity to the growth inhibitory signals. Okay, so what are the tumor suppressor genes? Tumor suppressor genes क्या होते हैं? ठीक है. Tumor suppressor genes are basically physiological and they are involved in the regulation of the cell growth. If there is a failure of the growth inhibition, that is the main event in the carcinogenesis. ठीक है. अब ये है कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता क्या है. ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्चुअली एक जीन होता है जो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी नॉर्मली और नेचुरली बॉडी में सेल्स के अंदर रखा हुआ है. इस जीन को इसका काम ये होता है कि ये प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन क्या करता है कि वो सेल्स की एक्सेसिव प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है. बस सिंपल इसकी अभी तक जो बात आपको समझ आनी चाहिए वो यही है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन इज़ अ जीन that is going to produce a protein and that protein will cause the inhibition of the cell proliferation. Cell cycle. In order to understand the details of the carcinogenesis, first we should know about the normal cell cycle. What happens in a normal cell cycle? Usually the cell which is a normal cell, it is present in a G0 phase, which is a resting phase. When the cell has to divide, it has to enter into the G1 phase, which is a growth phase. In growth phase, the organelles of the cell duplicates. After that, it enters into the S phase, which is a synthesis phase, and in synthesis phase, the DNA duplicates. After the duplication of DNA, the cell has to enter into the G2 phase, and in G2 phase, the cell prepares itself for the M phase, which is a mitotic phase. When the cell enters into a mitotic phase, one cell divides into two identical normal cells. So this was about the normal cell cycle, and in a normal cell cycle, there are the checkpoints which are present at different stages. The first one is present at the end of the G1 and before entering into the S phase. That is a cell growth checkpoint. The second one is at the DNA synthetic checkpoint, जो कि S phase में present होता है. The third one is a mitotic checkpoint, which is present at the end of G2 phase and before entering into the M2 phase. So what is the significance of these checkpoints? The significance of these checkpoints are basically to provide a controlled or to provide a check on the proliferation of the cells. क्योंकि ऐसा ना होना कि बस सेल्स प्रोलिफरेट करते जाएं और अनकंट्रोल ग्रोथ होती जाए और अल्टीमेटली एक नॉर्मल जो फिनोमेना होना है, जो सेल ने प्रोलिफरेट होना है, वो ऐसा प्रोलिफरेट कर जाए कि वो अल्टीमेटली ट्यूमर बन जाए या कार्सिनोजेनेसिस बन जाए. तो अल्लाह ताला ने नॉर्मल सेल में एक मैकेनिज़्म रखा है. ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स हैं जो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने रखे हैं. तो इन प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स को नॉर्मल होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन के लिए. क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर किसी भी जगह पे थोड़ा सा भी मसला होगा, बेशक मॉलिक्यूलर लेवल पे हो, जेनेटिक लेवल पे भी हो, कोई और वजह से कोई भी मसला हो, ये चेक पॉइंट्स अगर डिस्टर्ब्ड होंगे तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा अच्छा नहीं आएगा और ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी और वो नियोप्लेजिया की तरफ जाना शुरू हो जाएगा. अच्छा, अब हम ज़रा ब्रॉडली देख लेते हैं कि जो नियोप्लेजिया और ये कार्सिनोमा और ये ट्यूमर्स, ये सब चीज़ें क्या हैं. Cancer is actually a group of diseases involving the abnormal cell growth with the potential to invade or spread to the other parts of the body. जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है. खैर, पहले हम देखते हैं इस चीज़ को कि जो नियोप्लेजिया होता है ना, वो एक्चुअली एक न्यू ग्रोथ को कहते हैं. नियोप्लेजिया क्या है? न्यू ग्रोथ है, लेकिन ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ है और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है. अब नियोप्लेजिया जो है वो दो तरह का होता है. एक बिनाइन होता है और एक मैलिग्नेंट होता है. बिनाइन जो ट्यूमर्स होते हैं, जो बिनाइन अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, वो एक्चुअली एक इनोसेंट ग्रोथ होती है. उसका प्रोग्नोसिस या उसका जो आउटकम होता है वो इतना बुरा नहीं होता. पेशेंट यूजुअली उसे सर्वाइव कर जाते हैं. लेकिन जो मैलिग्नेंट नियोप्लेजियाज होते हैं या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं.
वो स्प्रेड करते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड करते हैं, और वो पता भी तब चलता है बॉडी में, एक पेशेंट का तब डायग्नोज होता है जब वो फुली तरह बॉडी में स्प्रेड हो जाए। क्योंकि जो ट्यूमर्स होते हैं ना, वो एक वाहिद ऐसी बीमारी है कि जो इंसान को पता ही एंड स्टेजेस पे चलती है, क्योंकि वो इतना स्प्रेड कर जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। किसी के लंग्स में चला जाता है तो सांस का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, किसी के लिवर में जाता है तो डीरेंज LFTs, ये सारे उनके जो लिवर फंक्शंस हैं वो सारे डीरेंज हो जाते हैं। किसी को स्पाइन में चला जाता है तो बोन के पेन स्टार्ट हो जाते हैं बैक के। तो ये समझाने का मतलब ये है कि जो बिनाइन होता है दैट इज़ अ इनोसेंट वन एंड मैलिग्नेंट इज़ अ एग्रेसिव वन। अब आगे चलते हैं, जरा इसको देखते हैं। ऑन्कोजेनेसिस कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेसेस दैट रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ सेल्स इन विच mutations have accumulated. Cells becomes immortal in the early step in the oncogenesis that continue to grow and divide even though the body has sufficient numbers of these cells. वही बात जो अभी हमने डिस्कस की। They lose contact inhibition and they need to adhere to the surface. दे लुक डिफरेंट एंड मोर राउंडेड। ये खैर बाकी हम माइक्रोस्कोपिक जो है ना वो उसकी तरफ ये पॉइंट जा रहा है कि इनकी शेप्स भी डिफरेंट हो जाती हैं और साइजेस भी डिफरेंट हो जाते हैं, अंदर भी चेंजेस आ जाती हैं। ओके, सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द कैंसर? यहाँ पे जो कॉजेज़ हैं वो हैं वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से कुछ कॉजेज़ हैं, कुछ केमिकल्स की वजह से कैंसर कॉज होता है, कुछ रेडिएशंस हैं जो कैंसर की तरफ लेके जाते हैं। अब ये क्या होता है? वायरसेस कैन कॉज कैंसर्स, फॉर एग्जांपल HCV virus, which is a hepatitis C virus that can cause hepatocellular carcinoma. Second one is a human papilloma virus, and human papilloma virus is responsible for carcinoma cervix. अच्छा, ये वायरसेस जो है ना ये एक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल्स पे, ये DNA को, जीन्स को ऑल्टर करते हैं। जब वो ऑल्टर होते हैं तो जो सेल साइकिल होता है वो सारा डिस्टर्ब्ड होता है और अल्टीमेटली कैंसर स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। ओके, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जैसे लाइक H. pylori कैन कॉज द गैस्ट्रिक लिम्फोमास। केमिकल्स में द केमिकल्स कैन कॉज इरिवर्सिबल DNA डैमेज विच लीड्स टू द कार्सिनोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक कैन कॉज द ब्लैडर कैंसर। रेडिएशंस में UV रेडिएशंस और आयनाइजिंग रेडिएशंस। अब जो UV रेडिएशंस हैं वो म्यूटेशंस करवाते हैं ऑन्कोजीन्स में और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में जो कि स्किन कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं वो करवाती हैं न्यूक्लिक एसिड में चेंजेस, जिससे क्या होता है कि पेपरी थायराइड कैंसर्स में एक रिस्क फैक्टर होता है। डैमेज जीन्स आर द रूट कॉज ऑफ द मोस्ट कैंसर्स, क्योंकि जो कैंसर होता है वो मोस्टली म्यूटेशन से, मोस्टली जेनेटिक लेवल्स पे जब इशू बनता है, चेंजेस आती हैं मटेरियल में, जीन्स में, तो कैंसर स्टार्ट हो जाता है। ये है बेसिक मैकेनिज़्म। इसमें यही है कि जो व्हाट कॉजेज द सेल्स टू लूज द कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, म्यूटेशंस इन द जीन्स दैट इनकोड द प्रोटीन्स that regulate the cell division, the altered proteins lose their ability to regulate the cell cycle. म्यूटेशंस क्या होती हैं? म्यूटेशंस होती हैं कि चेंज आ जाना जीन में। अगर चेंज आ जाए, एक जीन है उसने प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन ने फर्दर प्रोलिफरेशन करवानी है, तो अगर उस जीन में ही चेंज आ जाए तो उस लेवल का या उस क्वालिटी का प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर उस क्वालिटी का प्रोटीन नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली जो सेल साइकिल है उसको ना स्टॉप किया जा सकेगा, ना उसको रेगुलेट नॉर्मली किया जा सकेगा, मतलब प्रोग्रेस करवाया जाएगा। ओके, infections of a cell by a virus, the virus brings the new genes into cell that encode the proteins and that alter inhibit the proteins that regulate the cell division. Okay, अभी जो चीज़ आपको समझनी है वो दो चीज़ें, एक होता है प्रोटोऑन्कोजीन और एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये दो चीज़ें आप ज़रा गौर से समझिएगा क्योंकि यही आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। अदरवाइज़ ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, अगर आप इसको जितना मर्ज़ी पढ़ेंगे उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें बार बार पढ़नी भी पड़ेंगी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेरी कोशिश ये है कि इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको वो बेसिक चीज़ प्रोवाइड की जाए जो कि इस लेवल पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले है प्रोटोऑन्कोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स जो होते हैं ना वो एक्चुअली में दे आर द नॉर्मल जीन्स। जब प्रोटोऑन्कोजीन्स में कोई भी म्यूटेशन होती है, बेशक ये वो किसी वायरस की अटैक से हुआ
बेशक वो किसी केमिकल एक्सपोजर से हुआ, बेशक कि वो किसी रेडिएशन से हुआ, या वैसे कोई हेरिडिटरी कॉजेज़ की वजह से चेंजेस आ गई, खैर ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो प्रोटो ऑन्कोजीन एक नॉर्मल जीन पड़ा हुआ है ना सेल के अंदर, अब वो चेंज हो जाता है ऑन्कोजीन में, उसकी शेप या उसका जो समझ लें कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई, अब वो थोड़ा ऑन्कोजीन बन गया है। अब ऑन्कोजीन ने थोड़ा ख़तरनाक काम करना है, और ख़तरनाक काम वही है कि इसने अब नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन करवानी है। ठीक है, सेकेंड टर्म, अब इसको ज़रा यहाँ पे भी देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोटो ऑन्कोजीन्स एनकोड आइदर द ग्रोथ फैक्टर्स सच एज द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स और द काइनेजेस, टायरोसिन काइनेज, एंड द लेटर वन इज़ द रेगुलेटर ऑफ द सेल साइकिल। इस चीज़ को मेन जो मैंने आपको समझाया कि प्रोटो ऑन्कोजीन इज़ अ नॉर्मल जीन involved in a normal cell growth. When mutation occurs, it becomes oncogene and it will cause the growth of the cancer cells. Second term, which is very important and it is the actual topic of our today's discussion, it is the tumor suppressor gene. Tumor suppressor gene जो होता है वो एक्चुअली ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो ट्यूमर को बनने नहीं देते, मतलब वो सप्रेसर जीन्स हैं, वो ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन्स हैं। इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन में जो हमने बेसिक यहाँ पे दो मेन पढ़ने हैं, वो एक है इसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन में दो हम इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, एक है TP53 जीन और दूसरा हम पढ़ेंगे RB जीन। तो पहले हम ज़रा इसको देख लेते हैं कि सेल साइकिल कंट्रोल प्रोटीन्स, एक्टिवेशन ऑफ सेल प्रोग्रेशन, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस, CTK इनहिबिटर्स ऑफ द सेल प्रोग्रेशन ट्यूमर सप्रेसर, जिसमें RB जीन आता है और TP53 जीन आता है। अच्छा, इसको ज़रा मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेल साइकिल में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें हम पहले पढ़ते हैं TP53। अच्छा, अब ये जो सेल साइकिल है इसको कैसे इनहिबिट करते हैं, ये जो प्रोटीन बन गई है, ये प्रोटीन आगे ऐड करती है CDK के ऊपर और साइक्लिन्स के ऊपर काम करती है। ये जो CDK जो हैं, ये जो CDK और साइक्लिन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं और ये सेल साइकिल की जो है रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, मतलब उनको सेल साइकिल के ये ड्राइवर्स हैं, उसको प्रमोट करते हैं सेल प्रोलिफरेशन को। ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है P53, जो प्रोटीन बनती है इसके ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो बनती है P21। अब ये P21 क्या करेगा कि जो सेल के जो रेगुलेटर्स हैं, जो प्रोटीन्स जो कि सेल की प्रोलिफरेशन करवाते हैं, उसको ये इनहिबिट करते हैं। एक तो इसका ये काम है कि ये सेल साइकिल को स्टॉप करता है, अरेस्ट करता है, नंबर 1। दूसरा काम ये करता है ये जीन कि ये प्रोटीन बनाता है जो कि सेल की रिपेयर करवाता है। सेल की रिपेयर का मतलब ये है कि सेल को अरेस्ट करवाता है, एक फेज़ में स्टॉप करता है, आगे जाने नहीं देता और डीएनए को रिपेयर करवाता है। थर्ड में क्या करवाता है, ऐसे प्रोटीन्स बनाता है ये जो कि एपोप्टोसिस करवाता है। और एपोप्टोसिस हम पढ़ चुके हैं, पहले भी हमें इसका थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा कि एपोप्टोसिस एक्चुअली होता है प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब अगर हमें लगता है कि इस सेल की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर सेल को लगता है कि इस अभी ये जो आगे बन रहे हैं बॉडी को कि इस सेल्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है TP53 की एक्टिवेट होगा, ये प्रोटीन्स बनाएगा और एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ताकि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाए और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी ना हो, यानी कैंसर ना हो। वही बात कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स अपने ट्यूमर को सप्रेस करने के काम करते हैं, ट्यूमर को बनने नहीं देते। ठीक है, तो अभी तक जो ये 3 इसके फंक्शन बताए हैं, एक ये सेल को अरेस्ट करवाता है, आगे जाने नहीं देता, सेल्स की ग्रोथ नहीं होती। दूसरा क्या काम करता है, डीएनए को रिपेयर करवाता है, ये डीएनए को रिपेयर करवाएगा तो एक हेल्दी ग्रोथ होगी, साइकिल जो है वो हेल्दी चलेगा, प्रोडक्ट हमारा अच्छा आएगा और एक कंट्रोल्ड में आएगा, क्योंकि अगर डीएनए डैमेज होगा तो आगे प्रोसेसिंग नहीं होगी। सेल एपोप्टोसिस कराते हैं प्रोटीन्स बना के, ताकि जो सेल्स हैं वो जो डैमेज सेल्स हैं, ये जो ख़राब सेल्स हैं या एक्स्ट्रा सेल्स हैं, उनको स्टॉप कर दिया जाए।
सो अगर इस चीज़ को हम समराइज़ करें तो हम इसको ऐसे करेंगे कि जेनेटिक चेंजेस that occurs in cancer are the inactivation of the tumor suppressor genes and the activation of oncogenes. क्योंकि जब oncogenes एक्टिवेट होते हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जब इनएक्टिवेट होते हैं तो तब कैंसर बनना शुरू होता है, उसका जो कार्सिनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो तब स्टार्ट होता है। ये ट्यूमर सप्रेसर TP53 की स्लाइड है, इसको ज़रा हम एक रीड दे देते हैं। TP53 is a tumor suppressor gene located on small arm of chromosome 17. Its protein product P53 is present in almost all normal tissues. Loss of function mutations in the TP53 is the most common mutation observed in more than 50% of the cancers. Tumor suppressor gene TP53 mutations occurs at variable frequency with almost every type of cancer, including the 3 leading causes of the cancer death, namely carcinoma of the lung, colon and breast. ये नीचे अभी हमने जो सारे फंक्शंस उसके डिस्कस किए हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इस नीचे अगर आपको दिख रहा होगा कि द P53 रिस्पॉन्स कि कैसे एपोप्टोसिस हो रहा है और सेल को अरेस्ट किया जा रहा है और DNA डैमेज होगा, तो ये सारे इसका अभी जो हमने एक्सप्लेन किया ना इसको इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, इसमें इतनी डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि किसकी चीज़ के बाद कौन सी चीज़ बन रही है, बट मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ट्यूमर सप्रेसर जीन किस तरह ट्यूमर को बनने से रोकता है। अच्छा, TP53 halts the progression when the DNA is damaged. वही बात अभी हमने पहले भी ये डिस्कस की, आपको ईजी हो इसलिए मैं स्लाइड को भी साथ साथ उसको कोरिलेट कर रही हूँ। P53 halts the progression when the DNA is damaged to give the cell time to repair or triggers the apoptosis of the damaged cell by activating the BCL2 causing the mitochondria to release the cytochrome C and activate the caspase system. If damaged or mutated, the cell moves to the S phase that it may replicate. क्योंकि जो DNA की रेप्लिकेशन होती है वो होती है S phase में, इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बट द मेन कॉन्सेप्ट जो हम पहले भी समराइज़ कर चुके हैं उसको इसमें आपने माइंड में रखना है और इस स्लाइड को आपने उसको उस हिसाब से स्टडी करना है। मेरे इस लेक्चर में और मेरे इस प्रेजेंटेशन में आपको रेपिटेशंस मिल रही होंगी, तो उस रेपिटेशन का मकसद ये है कि जितनी दफ़ा मैं आपको एक चीज़ को बताऊं बार बार, उतनी दफ़ा आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करने में आसान हो और उसको मेमोराइज़ करने में आसान हो कि इस चीज़ को हमने पढ़ना किस तरह है। क्योंकि एक टॉपिक को लेके किस तरह जाना है और उसको पढ़ना किस तरह है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि स्लाइड्स को सिर्फ रट्टा लगाया जाए, उसको समझा ना जाए। तो स्लाइड्स को ज़रूर पढ़ना है लेकिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपसे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। लॉस ऑफ हेट्रोजेनिसिटी क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल जब एक जीन है उसके पास 2 एलील्स हैं, ठीक है। अब दोनों एलील्स अगर हेल्दी हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन के, तो जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होगा उसका फंक्शन भी हेल्दी होगा, वो नॉर्मल फंक्शन करेगा। अगर एक एलील उसका एबनॉर्मल हो जीन का, ट्यूमर सप्रेसर जीन का, तो इसको कहते हैं हेट्रोजेनिसिटी। और इसमें भी जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होगा वो हेल्दी काम करेगा, ट्यूमर को नॉर्मल काम करेगा, ट्यूमर को बनने नहीं देगा। इफ़ द बोथ एलील्स आर एबनॉर्मल देन दिस इज़ कॉल्ड एज अ लॉस ऑफ हेट्रोजेनिसिटी। और इसमें क्या होता है, इसमें फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन का फंक्शन लॉस हो जाता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन अपना काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, फिर सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करेंगे, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेट करेंगे और ट्यूमर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास जो सेकेंड है दैट इज़ कॉल्ड एज अ RB जीन ना। सो RB जीन जो है उसकी स्लाइड हमारे पास है, ये है स्लाइड। RB gene was the first discovered tumor suppressor gene, or which is present on chromosome locus 13. Inactivation of RB gene was found in retinoblastoma, which is a rare malignant childhood tumor derived from the retina. Retinoblastoma may occur either as a hereditary or sporadic form.
इसका ये नीचे इसका फंक्शन बताया हुआ है, इसको ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये सारी चीज़ें होती कैसी हैं, ठीक है। फिर आगे स्लाइड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो आरबी जीन है वो कैसे, उसका काम किस तरह होता है। तो जो हमने अभी पढ़ा था पहले सेल साइकिल में कि सेल साइकिल में जो होते हैं वो चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि सेल्स को देखा जाए, सेल्स ख़राब तो नहीं हैं, सेल्स डैमेज तो नहीं हैं, कोई इशू है तो उसी टाइम पे उसको डिटेक्ट करके उसको ठीक करके प्रोलिफरेट किया जाए, कहीं ज़्यादा तो नहीं प्रोलिफरेट करे, उस पर चेक रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। अच्छा, अगर वो चेक डिस्टर्ब होंगे तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब मेन चीज़ ये है ना कि जो सेल साइकिल है ना उसमें G1 फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द सेल्स विच क्रॉसेस दिस फेज हैज़ टू कंप्लीट द माइटोसिस। सो आरबी जीन और जो उसके बाद प्रोटीन बनता है वो G1 पार्ट पे एक्ट करता है और द सेल साइकिल एज अ चेक पॉइंट, ठीक है। फॉर अ सेल टू प्रोग्रेस थ्रू अ सेल साइकिल इट रिक्वायर्स अ ट्रांसक्रिप्शन। इस चीज़ को प्लीज़ समझिए आप सब, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के एतबार से, ये कॉन्सेप्ट है। जो आरबी जीन होता है वो चेक पॉइंट के तौर पे तो काम कर रहा है, लेकिन अब नॉर्मल हम बात कर रहे हैं कि जो सेल प्रोलिफरेशन होती है ना उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो रिक्वायर्ड है उसको कहते हैं E2F, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है E2F। E2F क्या करता है? सिर्फ E2F की फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F की बात हो रही है। ये DNA के साथ बाइंड करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है और अल्टीमेटली क्या करता है, सेल जो है वो प्रोग्रेस कर जाता है फ्रॉम G1 से S फेस। अभी हमने ये बात पढ़ी कि G1 के पॉइंट पे ये चेक पॉइंट, G1 के फेस पे ये चेक पॉइंट के तौर पे काम कर रहा है। तो जब ये G1 के पॉइंट पे काम कर रहा है तो यहाँ पे E2F एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसका काम नॉर्मली ये होता है कि ये DNA के साथ अटैच होता है, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। और हमें पता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन्स का बनना होता है। जब वो प्रोटीन्स बनती हैं तो ये सेल को आगे मूव ऑन कर देता है कि भाई आप G1 से S फेज में चले जाएं, ठीक है। अब आपने E2F आपने पढ़ लिया। अब आपने पढ़ना है आरबी जीन को। आरबी जीन क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का तो काम हमने देख लिया, अब हमने देखना है कि भाई आरबी जो जीन का हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं उसका काम क्या है, वो क्या कर रहा है। यहाँ पे आरबी जीन की दो फेजेस हैं। एक उसका फेज़ है हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फेज़ और एक उसका फेज़ है हाइपर फॉस्फोराइलेटेड फेज़, ठीक है। तो हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फेज़ है ना, उसमें क्या होता है, जो E2F फैक्टर होता है ना उसके साथ ये आरबी जीन जो है वो अटैच्ड होता है, ठीक है। ये नॉर्मली अटैच्ड होता है और उससे क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, जो E2F है वो अब अकेला नहीं है, सेपरेटेड नहीं है कि वो DNA के साथ बाइंड हो जाए। अब वो DNA के साथ बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी और सेल साइकिल आगे मूव नहीं करेगा, सेल आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये नॉर्मली होता है। व्हाट इज़ हाइपर फॉस्फोराइलेटेड स्टेट ऑफ आरबी जीन? हाइपर फॉस्फोराइलेटेड जो स्टेट होती है आरबी जीन की वो एक इनएक्टिवेटेड स्टेज होती है। इसका मतलब ये कि आरबी जीन खुद इनएक्टिवेटेड है, तो वो जब खुद इनएक्टिवेटेड है इस पर बहुत ज़्यादा फॉस्फेट अटैच्ड हो गए हैं आरबी जीन के ऊपर। अब वो बेचारा क्या कर रहा है, वो E2F को पकड़ ही नहीं पा रहा, उसके साथ बाउंड ही नहीं हो पा रहा। तो अल्टीमेटली E2F जो है वो रिलीज फॉर्म में। अब E2F को रिलीज़ होने का मतलब ये कि अब इसने क्या करना है, अब इसने DNA के पास जाना है, DNA के पास जाना है, उसके साथ बाउंड होना है, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करना है और सेल को G1 से S फेज में लेकर जाना है, यानी सेल साइकिल को मूव ऑन करवाना है। ये हमने पढ़ा जब आरबी जीन इनएक्टिवेटेड है, जब आरबी जीन ख़राब है। आरबी जीन का नॉर्मल फंक्शन होना भी कैंसर को प्रमोट होने से रोकता है। अब जब ये इनएक्टिवेटेड है तो कैंसर तो बनेगा क्योंकि E2F अकेला है और E2F जाके DNA के साथ बाइंड होगा, ट्रांसक्रिप्शन को करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी तो सेल मूव ऑन कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको ज़रा रीड कर लेते हैं। आरबी जीन इज़ गोइंग टू बाइंड टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F एंड प्रिवेंट्स द जीन एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स नीडेड टू गो टू द S फेज। ये अभी हमने जो पढ़ा। इट इज़ अ नेचुरल ट्यूमर सप्रेसर एज वी ऑल नो। RB gene binds to E2E to suppress it so that the gene expression is inhibited. Due to this binding,
cell go to S phase of the cell cycle, and if RB gene is suppressed, the cell will directly go and divide abnormally. RB suppressor normally responsible for inhibition of the E2F. Okay. अब आगे देखते हैं what is two hit theory of a cancer causation. टू हिट जो हाइपोथेसिस है उसको कहते हैं नटसन्स टू हिट हाइपोथेसिस, यानी टू हिट का मतलब है कि दो दफ़ा म्यूटेशंस होना और इन्वॉल्विंग द टू और द बोथ एलील्स ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द आरबी जीन, तो हम आरबी जीन से के हवाले से ही बात करेंगे. अब जो ये हाइपोथेसिस या म्यूटेशन होगी तो उससे जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा और अल्टीमेटली ट्यूमर डेवलप्ड हो जाएगा. अभी हमने पढ़ा था ना पीछे कि आरबी जीन कैसे हाइपर फॉस्फोराइलेटेड और इनएक्टिवेटेड फेस में जाता है. अब उसका ये हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक तरह से कि पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं कि भाई वो इनएक्टिवेट कैसे होता है. यहाँ पे हमने रेटिनोब्लास्टोमा, हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा और स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा को ज़रा देखना है. उसके एग्जांपल्स हम इसको रिलेट करेंगे. फर्स्ट जो हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा है उसमें फर्स्ट हिट जो होता है ना वो बर्थ पे होता है और ये एक इनहेरिटेड म्यूटेशन होती है, बट इट इज़ गोइंग टू इन्वॉल्व ओनली वन एलील ऑफ द आरबी जीन. सेकेंड हिट जो होते हैं वो एक्वायर्ड म्यूटेशन होती है और वो दोनों एलील को इन्वॉल्व करेगा आरबी जीन के. तो जब वो दोनों एलील इन्वॉल्व होंगे तो हमारे पास ये जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा, हाइपर फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में चला जाएगा, E2F फैक्टर रिलीज हो जाएगा, वो डीएनए से अटैच्ड होगा, वो डीएनए से अटैच होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, प्रोटीन्स बनेंगी और सेल को रेगुलेट किया जाएगा G1 से S फेज़ में. सेकेंड आपके पास आता है स्पोरेटिक रेटिनोब्लास्टोमा. इसमें फर्स्ट जो हिट होती है वो बर्थ पे बिल्कुल भी नहीं होती, दोनों एलील्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ये रेयर फॉर्म होती है. जो फर्स्ट हिट होती है वो एक्वायर्ड होती है लेकिन वो थोड़ा लेटर ऑन लाइफ होती है, और सेकेंड हिट भी इसी तरह लेटर ऑन लाइफ लेकिन एक्वायर्ड होता है, और ये बहुत रेयर फॉर्म है. और इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली आपके पास आरबी जीन इनएक्टिवेट होता है और ट्यूमर्स जो हैं वो सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करते हैं और वो ग्रोथ कर जाते हैं. ये जो स्लाइड है ना ये इसको यही एक्सप्लेन कर रही है. अगर आप इसको देखें हेरिडिटरी में क्या है कि हेरिडिटरी को दिखाया हुआ है और नॉन हेरिडिटरी विच इज़ एक्चुअली अ स्पोरेडिक फॉर्म उसको दिखाया हुआ है कि नॉर्मल सेल्स हैं, रेयर इवेंट होता है, फर्स्ट हिट जो होता है लेटर लाइफ में होता है, बर्थ पे बिल्कुल दोनों एलील्स देख रहे हैं आपके नॉर्मल है, यहाँ पे फर्स्ट हिट हुआ ठीक है, फिर सेकंड हिट जो है वो बाद में हुआ तो ये एक एबनॉर्मल हो गया. हेरिडिटरी जो है ना इसको यहाँ पे people with a hereditary susceptibility to cancer inherit a damaged gene on the one chromosome, so their first hit or mutation occurs at conception. Other people may receive the first hit at the later stage before or after birth. In either cases, if a cell receives a damage to the same gene on the second chromosome, that cell can produce a cancer. तो ये चीज़ जो है ना इसको ज़रा एक्सप्लेन किया गया है इधर. ओके ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ये सारा वही मैकेनिज़्म है जो नॉर्मल कि क्या क्या करता है, पॉप्टोसिस को स्टॉप करता है, सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, डीएनए को रिपेयर करता है. अगर म्यूटेटेड इसकी फॉर्म होगी तो कोई भी फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली अपना, और सेल को क्या करवाएगा, साइकिल को कंटिन्यू करवाएगा, और जो सेल्स हैं दैट कैन बिकम कैंसरस. ओके सम इम्पॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. सिर्फ आरबी जीन और TP53 जीन ही ट्यूमर सप्रेसर जीन नहीं है. ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स रखे हुए हैं. और इसमें कुछ और जीन्स भी हैं जिसमें APC जीन है, उसकी जो लोकेशन है क्रोमोसोम 5 पे है, और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है इतना ज़्यादा कोई क्लियर नहीं है, लेकिन कार्सिनोमा ऑफ कोलॉन, स्टमक और पैंक्रियाज, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फेमिलियल एडिनोमेटोसिस पोलीपोसिस कोलाई. इसको तो आप बिल्कुल रट लें कि APC जीन जो है वो फेमिलियल एडिनोमेटोसिस पोलीपोसिस कोलाई, जिसको FAP भी कहते हैं, और मतलब एक कार्सिनोमा ऑफ कोलॉन ही है ये. इसको बहुत अच्छे से इसके साथ आपने याद रखना है. फिर ये WT1 है जो कि नेफ्रोब्लास्टोमा विल्म्स ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड है. DCC जो है वो कार्सिनोमा ऑफ कोलॉन और ये स्टमक के साथ भी एसोसिएटेड है. फिर है NF1 जो कि श्वानोमास या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 इनके साथ एसोसिएटेड है. NF2 श्वानोमास और मेनिंजियोमास और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 के साथ एसोसिएटेड है. फिर है
VHL जो है वो रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ या वॉन हिपल लिंडोर्फ डिजीज़ के साथ लिंक्ड है। मेन चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं ना इस स्लाइड में, वो चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कौन सा जीन जब म्यूटेटेड होगा तो कौन सा मोस्ट लाइकली कैंसर जो इसके साथ एसोसिएटेड है। और इसको याद रखना है आपने, क्योंकि किस कैंसर में कौन से जीन की म्यूटेशन होती है और कौन से जीन में डिफेक्ट होता है, ये हमें इस लेवल पे पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच।